اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہے. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک سائن ہے, یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے, تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا, میں نے کیا ہے, تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے, میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کم وقت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ, دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے, ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا, اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا, بھائی نہیں ضروری آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے, وہ غلط بن گیا آپ صحیح بنا دو, کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا, مسلط کر دیا ہے, یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو, تربیت ضروری ہے, تربیت انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا, تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی, وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی, کہیں بھی نہیں پڑھے, اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا, بزنس کی ضرورت ہوگی, اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں, ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے, بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی, بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے. ایسے ایسے تاج, میرے تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا کخ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے ایسے چھاپنے گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے, اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو بزنس کرنا آ جائے, یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اس کو تو کم وقت ویسے ہی آ گیا, تبھی تو پیسہ کمایا اس نے. اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا, اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے, یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا. اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں, اس کو یہ پہنانا کیسے, یہ پلاٹ, یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے ہے, یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھا. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے, ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, حکیم آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نہ چھوڑتا ہوں, تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے, کم وقت سالے معذرت کے ساتھ کہ تجھے آتا تو کچھ, شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں, سالا بزنس پڑھ کے آدھا ہو گیا, ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ, اور تم کچھ بھی نہیں آتا, کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو, تمہارے 20 اکاؤنٹ انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر. حالانکہ کسی یونیورسٹی, کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. پر انگلش, میں نے کہا انگلش کہاں سے سیکھی, کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے, یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں, گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا, مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے, کیسے رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو, توکل کس پہ کرو, اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے. ہاں تربیت کی فکر کرو, تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, نہیں ہے بولے بغیر پڑھے بن جائے گا کچھ, ٹھیک ہے نا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہے, زکات چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے, پیسے نہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی, نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا, بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے. میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے, اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے, رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتہ چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے, تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے, اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں, رکشے والے نہیں. آ رہی بات, کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشا چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے, موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ, کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب, تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, صبر کرو. یہ تو نہیں میں تو ناکام ہو گیا, میں تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا, میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا, یہ بھی کر رہا تھا, اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا, اب ٹینشن لے رہا ہے.
भाई असबाब कामयाबी के इख्तियार करने हैं, नतीजा किस पे छोड़ना है? अल्लाह पे, जो है इसी में बेहतरी। बीमार हो गए भाई, पैगंबरों की भी बीमारियां आई। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी किसमें गुजरी? बीमारी में। इसी बीमारी की वजह से अल्लाह ने कहा निअमल अब्द, अय्यूब बेहतरीन बंदा था। ये बीमारी ना आती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र ना होता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, यही बादशाहत उनकी कामयाबी का जरिया। हजरत सुलेमान को बादशाहत ना मिलती तो कुरान में उनका तज़किरा ना होता। तो भाई कोशिश बादशाह बनने की करनी है, लेकिन जो हालत में अल्लाह रखे राजी उसमें रहना है। सब्र ये करना है कि भाई अगर मैं सेहत की कोशिश कर रहा था नहीं कामयाब हो सका, बीमारी है, तो अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में कामयाब किया। अल्लाह मुझे इसी बीमारी में, बोलो भाई, नवाजेगा। अल्लाह चाहता है मैं सब्र का सवाब हासिल करूं। तो आप कोशिश करो आपका बच्चा बहुत बड़ा ताजिर बने, नहीं बना, रक्षा चला रहा है, भाई अल्लाह मुझे इसी में क्या करेगा? नवाजेगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो क्यों दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो? ये रक्षा वाले के जन्नत में नहीं आएंगे? तो इसलिए बच्चे ना रोको। कुरान कह रहा है ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें पता नहीं कौन सा इसमें तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, कौन सा तुम्हें फायदा पहुंचाए। सारे बच्चों को पढ़ा लिया, कोई काम नहीं आए। एक जो अनपढ़ था नोट वो छापता है, ठीक है ना, जिसको आप समझ रहे थे किसी काम का नहीं। वो एक साहब ने जो है ना अपने बच्चे, 3-4 बच्चे थे, उनके तारुफ करवा रहे थे, ये मेरे बच्चे से मिलिए इंजीनियर है, फखर है, इनसे मिलिए ये डॉक्टर है, इनसे मिलिए ये साइंटिस्ट है, तो इनसे मिलिए ये चोर है। तो उसने कहा इसको निकाल दो। कहते कमाता यही है, क्या करूं? निकालू कैसे? इन सब के कम वक्तों पे इतना खर्च किया, कमा के लाते नहीं है, खिलाने वाला कौन है? ये तो खैर एक लतीफा है, लेकिन बाज़ वो चोर नहीं होता, वो मेहनती होता है, किस्मत उसकी अच्छी निकल आती है। तो ये अगर आपकी मेहनत से पैसा मिलने वाला होता ना मेरे भाई, तो इमाम शाफी ये शेर ना कहते लौ कान बिल हय्य लिल गिना लवजदतनी बिनुजूरि अक़तारिस समाई तअल्लुक़ी। कहते हैं भाई पैसा तकदीर से मिलता है, कोशिश से नहीं मिलता। कहते हैं अगर मेहनतों से मिल रहा होता तो मुझे देखते कि मैं आसमान के सितारों तक पहुंच गया होता। लेकिन कहते हैं हमने अजीब हालत देखी है कि खुशकिस्मतों को बैठे बैठे मिल जाता है, बदकिस्मत पीछे भागते रहते हैं पैसे के, सारी जिंदगी पैसा उनको सताता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। उसके लिए बड़ी प्यारी मिसाल दी इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने। फरमाया इदा समिअत बि अन्न मजदूदन अता ऊदन व इदा समिअत बि अन्न मजदूदन हवा ऊदन फअस्मर फी यदैहि फसद्दिकी व इदा समिअत बि अन्न महरूमन अता माअ लियशरबहु फगादा फहक़्क़ी। कहते हैं अगर तुम कभी सुनो ना कि एक बदकिस्मत आदमी पानी पीने के लिए कुएं के पास आया, पानी लबालब भरा हुआ है, बंदा क्या है, अल्लाह ने उसकी किस्मत में रखा है कि पानी इसको नहीं मिलेगा। वो कुएं के पास भी आ गया, कुएं में पानी भी क्या है, भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते। तो तुमने सुना कि पानी उसको देखते ही नीचे चला गया, ठीक है ना। तो कभी ऐसी खबर सुनो ना तो तस्दीक कर दिया करो, ये कोई अचंभे की बात नहीं, होता है ऐसा। सारे वसाइल होते हैं, पानी फिर भी नहीं मिलता, पानी देख के गायब हो जाता है, बोलता है मैं तो आया हुआ था लेकिन तेरी किस्मत में मैं हूं नहीं, मैं जा रहा हूं, टाटा, ठेंगा दिखाता हुआ जाता है पानी। तो कह रहे हैं ऐसी खबरों पर यकीन कर लिया करो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, बदकिस्मतों के साथ ऐसा होता है। और कहते हैं कभी ऐसा सुनो ना कि एक आदमी ने खेती बाड़ी की और वो हल चलाया और वो सोना यूरिया एंगो यूरिया डाला और ये हो और फलाना ढिमकाना, और इतना कुछ करने के बाद भी फसल नहीं होगी, पैसे डूब गए। लेकिन एक आदमी ने क्या किया, वैसे ही लकड़ी हाथ में पकड़ी और उसने वहीं फल देना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं, हल चलाए न खाद डाली। वइज़ा समिअत बि अन्न मजदूदन हवा ऊदन फअस्मर फी, हाथ में ही फल देना शुरू कर दिया, सद्दिकी, बोल दिया करो ऐसा भी होता है, कोई अचंभे की बात नहीं। एक मिसाल से समझाया, बाज लोगों के पीछे दौलत भागती है, वो कह रहे हैं पता नहीं कहां से आ रहा है, उधर से भी आ गए, उधर से भी आ गए, आज वो प्लॉट भी बिक गया, आज वो भी कारोबार हो गया, वो भी हो गया, बरस रहे होते हैं नोट, समझ में नहीं आ रहा होता यार ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। जिस बिजनेस में हाथ डाले, हमारे एक जानने वाले बैंक में, इस्लामिक बैंक में, तो उनका ट्रांसफर बहुत होता रहता है। तो मैंने कहा यार ये क्या है अजीब, कभी उधर ट्रांसफर कभी उधर, है बहुत बड़ी पोस्ट पे। इसने कहा ये जिस बैंक जो नहीं चल रहा होता ना, इनको वहां भेज देते हैं तो वो चलना शुरू। क्या इनके हाथ में बरकत है, जो ब्रांच नहीं चल रही होती ना वहां इनका ट्रांसफर होता है और वो पहिए लगाए बगैर दौड़ना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ऐसा भी होता है कि आप रिस्क आपको तलाश कर रहा होता है और बाज़ दफा जो काम करो नहीं हो रहा, तो ये किसके हाथ में मेरे भाई? अल्लाह के। तो इसका मतलब जिसके पास रिस्क के दरवाजे खुले हुए ना वो इतराए कि अल्लाह मुझसे खुश है, ना 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 ना, इस खुशहमी में मुब्तला ना हो। अल्लाह आपको दे के आजमा रहा है, अल्लाह क्या कर रहा है भाई? खिला के आजमा रहा है। और जो हर काम में हाथ डाले काम नहीं हो रहा, वो टेंशन में ना आए, वो ये ना समझे मुझ पे किसी ने सिफली कर दिया, जादू कर दिया है, मैं फला आमिल को दिखाऊंगा और जादू है और ये करवाना फलीते पलीते, ना 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 भाई, अल्लाह आपको आपसे छीन के आजमा रहा है। जिसको अल्लाह ने दे दिया वो भी मरेगा और आप भी क़यामत का ऐलान करके नहीं जाओगे, आपका भी इन्ना लिल्लाह। कब्र में जाने के बाद बगैर जेब, जिसका प्लॉटों का करोड़ों का बिजनेस था, वो भी एक फाइल भी अपने साथ लेके नहीं जाएगा। अरे जिसका जो ओनर था, जो रियाज मलिक है, वो नहीं लेके जाएगा, तो जिसके बैरिया टाउन में प्लॉट है वो कहां से लेके जाएगा? है भाई, जो ओनर है वो कफन में जेब के बगैर जाता है कि नहीं आता? तो ये सोच लिया करो भाई, ये कौन सा जो है ना कब्र में साथ लेके जाएगा। तो भाई लेके भी अल्लाह आजमा रहा है और दे के भी आजमा। तो बच्चे पैदा करो, नस्ल मत रोको, ठीक है, अल्लाह पे तवक्कुल करो। और रिपोर्ट पता है क्या है कि बढ़ेगी नस्ल तो अल्लाह की तरफ से रिस्क के दरवाजे खुलेंगे नहीं, टूटेंगे, सही है ना, खुलेंगे नहीं। कुरान के पास अल्फाज बड़े अजीब हैं। एक अरब आलिम ने बड़ी प्यारी बात लिखी, अरब क्या करते थे, बच्चे को गुर्बत के खौफ से कत्ल कर देते थे, क्योंकि वो माँ के पेट में हमल जाया करना जानते नहीं थे ना, इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी कि माँ के पेट में हमल, अब हमल ठहर गया तो वो परेशान होते थे, क्या करें? तो कहते पैदा होता ही मारो इसको ना, क्योंकि हम खुद नहीं खाने को मिल रहा है, इसको कहां से खिलाएंगे? तो
कुरान ने कहा ना ना ना, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे और इसको भी। तो उलमा ने इसके तहत लिखा है, इससे पता चलता है बच्चा पैदा होने से बच्चे को रोजी बाद में मिलती है, वालिदैन को पहले मिलती है। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें भी देंगे और बोलो इनको भी देंगे। तो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले होना चाहिए भाई मुसलमान को। तो ये ना जाओ, और फिर दिल बड़ा होता है यार इंसान का, जब वो अल्लाह की तरफ से रोजी आता हुआ देखता है और तवक्कुल बढ़ता है। और ये जो कहते हैं मेरे इतने बच्चे फिर भी गरीब, या तो ये कमबख्त अपनी हरकतों की वजह से गरीब है। फोकस बच्चे पैदा करने पर किया इसने, कमाने को फोकस बोलो भाई किया ही नहीं। वो तो हो, कमाना भी तो है ना, कोशिश भी तो करनी है, ये जिम्मेदारी तो पूरी करो। समझ में नहीं आ रही बात? तो एक है रिस्क, कमाना भी है, मेहनत भी करनी है, अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि अल्लाह उस कुएं में पानी ज्यादा देता है जिस कुएं से लोग ज्यादा सैराब होते हैं। उसका पानी ताजा भी रहता है, और कुएं से पानी से लोग सैराब होना बंद हो जाए तो कुएं का पानी सड़ जाता है। ठीक है। दूसरी बात तरबियत की, लोग कहते हैं तरबियत नहीं होगी, तो बच्चों को बिगड़ने मत दो, खुद ही तरबियत हो जाएगी। बिगाड़ने की कोशिश ना करो। हर बच्चा नेक पैदा होता है, हदीस में आता है, जब नेक है तो वो तो नेक ही बनेगा ना। माँ बाप बिगाड़ रहे हैं तो बिगाड़ो मत उनको, माहौल बुरा मत दो, समझ रहे हो? निगरानी करो कि चर्सियों में तो नहीं उठे बैठ रहे, गलत लोगों में तो नहीं उठे बैठ रहे, ऐसी जगह मत रहो जहां चर्सी हीरोइन रहते हो। शराबियों में रहोगे फिर तो एक बच्चा होगा वो भी बिगड़ेगा, अच्छे लोगों में रहोगे तो 10 भी होंगे इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। तो ये है तरबियत का मतलब। और बच्चे ज्यादा होने से तरबियत आसान इसलिए होती है कि वो खुद एक दूसरे की तरबियत कर रहे होते हैं। बहन भाई जितना एक दूसरे पे निगरानी करते हैं माँ बाप नहीं कर सकते। मेरे ऊपर बहन भाई ना होते ना तो मैं मौलवी तारिक मसूद नहीं बनता, मैं आज यहाँ बैठ के बयान नहीं कर रहा होता, समझ रहे हैं? मेरे तो ऊपर बहन भाई थे, बहुत निगरानी की उन्होंने, पढ़ाया भी है, निगरानी भी की, कहाँ जा रहे हैं। अब्बा को तो बेचारों को थोड़ी पता होता है नई नस्ल की हरकतें। अरे अब्बा तो बेचारे, उनको नई जनरेशन की शरारतें पता होती हैं। अब्बा को बेवकूफ बनाना आजकल आसान है, अब्बा तो पुराने जमाने के, उनको तो पुरानी चीजें, नई लोगों की शरारतें नहीं होती है ना। भाइयों को पता होता है कि मार्केट में किस किस्म की 2 नंबरियां चल रही है, वो भाई भाई भी निगरानी करेगा। समझ में नहीं आ रही बात? तो ये बहुत सारे, ये पूरा एक सिस्टम है भाई, अल्लाह ने नेचर का हिस्सा है, ये एक दूसरे को, एक दूसरे पर नजर रखते हैं, तरबियत करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं दावा करूं मैं बहुत अच्छा हूं, आपके इनके बहन भाई तो बहुत अच्छे बन गए, वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आपके लिहाज से तो, आपका ख्याल में तो अच्छा ही होगा ना, तभी तो आप बयान सुनने आए हैं। तो आपके ख्याल के मुताबिक, बाकी हम क्या हैं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं क्यों बताऊं मैं क्या हूं, मैं क्यों बताऊं मैं क्या हूं? अगर मैं बुरा हूं तो अल्लाह जाने भाई, मेरा अल्लाह का मामला है, अगर मैं अच्छा हूं तो किसका मामला है? अल्लाह हमारा मामला है। तो दावा क्यों करें भाई हम? क्यों दावा करेंगे तो अच्छे होना हो, अल्लाह की नजर में बहरहाल बुरे बन जाएंगे। तो खैर रिपोर्ट ये थी कि तरबियत भी आसान है, बच्चे खुद एक दूसरे की, मेरे जिस घर में ज्यादा बच्चे हैं वहां में मुझे टेंशन कम है, सब खुद ही एक दूसरे की निगरानी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कम होते हैं तो वालिदैन पर हो जाता है। हाँ, इकट्ठे पैदा हो जाए ना 10, फिर टेंशन है, इकट्ठे होते नहीं है। जब 10वां होता है तो पहला वो जवान होकर बाप के कामों में हाथ बटा रहा होता है, समझते हो? तो बरसाती मेंढक तो धड़ाधड़ इकट्ठे पैदा होते हैं ना, उसमें ये थोड़ी एक मेंढक पैदा हुआ तो पहला वाला बड़ा हो चुका है। बच्चों में ऐसा नहीं होता, एक पैदा होता है तो पहला वाला बड़ा हो चुका होता है, वो बच्चा रहा नहीं होता। 10 बच्चे किसी के होते हैं ना, जब जिसने कहा मेरे 28 बहन भाई हैं, 28 बच्चे मेरे अब्बा के, तो वो छोटे छोटे थोड़ी हैं, ठीक है ना। वो तो सारे जवान हो चुके होंगे, बेटियों की शादियां हो चुकी होंगी। हमारे एक जानने वाले थे, उनके माशाल्लाह वो 23 बहन भाई, अब 30 हो चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया 30 बहन भाई। अब कोई सुनता था यार तुम्हारे बाप के 30 बच्चे, तो वो भाई वो जो 30 बच्चे थे उसमें 20 तो जवान हो चुके हैं, ठीक है ना। वो तो बाप पे बोझ नहीं है, बल्कि बाप को भी पाल रहे हैं, माँ को भी पाल रहे हैं, माओ को 3 माएँ थी उनकी। तो इसलिए ये सब लफाजी, मैंने कहा ना फिरौन ने क्या कहा था, मैं बेहतरीन बात करूंगा, हालांकि बदतरीन बातें कर रहा था। तो फैमिली प्लानिंग वाले भी लेवल क्या लगाते हैं, तरबियत, एक्चुअली असल में सेटिंग और तरबियत और औरत की सेहत, हमल रोकने के लिए जो औरत गोलियां खाती हैं, कोई एक गोली दिखा दो जिससे औरत की सेहत अच्छी होती है। कोई एक कुश्ता दिखा दो कि ये वाला कुश्ता जब औरत खाएगी तो हमल रुकेगा और औरत सेहतमंद, कैल्शियम बढ़ जाएगा। सारी गोलियां औरत की सेहत का बेड़ा गर्क कर रही हैं, इंजेक्शन बेड़ा गर्क कर रहा है। नहीं आ रही तो रहने दो, जैसे चलो चलते हो। ठीक है, 80-28 मिनट में वो एक के बच्चे बहुत थे, तो उसने कहा यार वो फैमिली प्लानिंग वालों ने तो मना नहीं किया, तुम लोग 30 बहन भाई हो, फैमिली प्लानिंग वालों ने, वो आए थे वो स्कूल समझ के वापस चले गए। वो क्या समझ के? ये भी लतीफा गलत है, इसलिए कि वो 30 बहन भाई जब थे तो वो बच्चों, वो एक जैसी उम्र के नहीं थे, वो देखने में स्कूल लगता ही नहीं। उसमें जो जवान होता गया वो वैसे भी घर से निकलता गया होगा, ठीक है ना। वो अपने अलग घर बना के बैठा हुआ होगा, वो अपनी शादी करके अपने बच्चों को पाल रहा होगा। बाप जब उसने, जिसके 30 बहन भाई थे ना, उसने कहा मेरे वाले जब घर में आते हैं तो हटो बच्चों, ऐसी इज्जत होती है ना। एक दस्तरखान लगता है, अब्बा दादा भी बन चुका है, वो बहुत सी, वो दामादों के ससुर भी बन चुके हैं, सही है ना, नाना भी है और बीवियों का शौहर भी है, ठीक है ना, और बाप भी है। तो खानदान में जो उसकी वैल्यू है ना, उसका कोई तस्वुर कर ही नहीं सकता। ऐसे चमन के थे, वो थे क्या हैं, वो बार बार कहेंगे मुझे थे क्यों बना दिया मुझे साहब ने। ऐसे पगड़ी पहन के करें दस्तरखान पे बैठते हैं और सारा खानदान लाइन से बैठा होता है। तो वो 30 इतने नहीं होते, उनमें 2-4 इतने होंगे जो लेटेस्ट वर्जन है। जो पुराने हैं वो तो कमा के खिला रहे हैं अब्बा को, बेटियां भी शादी हो गई उनकी, वो अपने घरों में, वो भी आई हुई है मिलने, ईद बकरीद पे क्या रश लगता होगा, दामाद भी आते होंगे। ये बादशाह तो इस पर है आपकी, बगैर इलेक्शन के बादशाह और सच्ची मुच्ची के बादशाह। लेकिन नहीं समझ में फिर भी नहीं, जैसे चल रहे चलते। खवातीन ये कहती हैं हम इतने बच्चे पैदा करेंगे ना तो हमें शर्म आएगी, लोग कहेंगे तुम्हारे बच्चे, तो शेम शेम शेम। तो देखो ये जो आपका हुस्न जमाल है ना, थोड़े दिन का है, माँ बनने की जो नेमत है ना, ये सोच के उससे पीछे ना हटो कि लोग मुझे कहेंगे इतने बच्चों की माँ। जो आपकी हुस्न जमाल है थोड़े दिन में वैसे ही मार्केट से शार्ट होने वाला है, समझ रही हो? खवातीन को कह रहा हूँ, ये वैसे ही शार्ट होने वाला है। ये थोड़े दिन का डिस्टेंपर है। औरत पे बुढ़ापा मर्द की निस्बत बहुत जल्दी आ जाता है,
बहुत जल्दी आता है। तो आपको तो जल्दी अपना खानदान चाहिए कि जैसे ही मैं 40-45 साल की हूं तो एक खानदान हो, एक बेटे हो पालने वाले, फख्र करूं मैं उन पे। और वैसे भी जब कुदरती लाइफ होती है ना तो बुढ़ापा वैसे भी देर से आता है। जब नेचुरल लाइफ से हटेंगे तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। औरत के लिए विलादत के अमल से गुजरना ये नेचुरल है या नहीं है? तो ये कैसे मुमकिन एक चीज नेचर का हिस्सा हो और वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो? ये खुदा की कसम किसी की अकल में आने वाली बातें नहीं है, ये सिर्फ गिनतियां सिखाई गई हैं उल्टी उल्टी, समझ रहे हो? इसलिए उनको औरतें देर तक जवान भी रहती हैं, उम्र भी लंबी होती है, जिनकी औलादें ज्यादा होती हैं, जो बच्चे रोकती हैं बुढ़ी भी जल्दी होती हैं और बीमारियों का भी शिकार होती हैं, हुस्न जमाल भी उनका खत्म होता है। तो ये मेडिकल साइंस के हवालों के साथ ये चीजें मेरे पास मौजूद हैं। और वैसे भी ये तो खोपड़ी में आने वाली चीजें हैं ना, ये तो नेचर से थोड़ी कोई बगावत कर सकता है। तो ये औलाद आपके भी काम आएगी, आप भी बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। और बुढ़ापे का टाइम भी कोई कम नहीं होता। 20 साल तकरीबन जवानी और लड़कपन के होते हैं, बचपने के 20 साल से लेके बहुत लगा लो 50 साल, ये आपके क्या हैं, मौज मस्तियों के। 50 साल के बाद बुढ़ापा, और वो कब तक चलता है? 70 साल तक चलता है ना। और अगर सेहत अच्छी हो तो 80, 30 साल आपने निकालने हैं आखिर, और उस वक्त आपको जरूरत ज्यादा है। 30 साल अगर आपकी औलाद होलसेल के हिसाब से होगी तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा, नहीं होगी तो अच्छा टाइम नहीं गुजरेगा, क्योंकि उसमें ये पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि ना मिठाई खा सकोगे शुगर की वजह से, एयर कंडीशन में ज्यादा रहोगे तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ड्राइविंग करते हुए हाथ कांपेंगे, लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकते, वो किसी और से गाड़ी, वो जो घूमने फिरने की अय्याशी वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म। तो उस वक्त सिर्फ एक औलाद ही होती है जो इंसान को राहत देती है। तो उस जिंदगी के लिए कुछ नहीं सोचते, लेकिन समझ में नहीं आया।